بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر تک کے سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہیں، جائیں اور اسے کلک کریں اور پہلا پارٹ ضرور دیکھیں۔ دوستو، جب قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر کے غلاموں کی منڈی میں لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگنے لگی۔ اتفاق سے اس وقت عزیز مصر کا وہاں سے گزر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آئے، اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، اے زلیخا، یہ لڑکا کسی نیک باپ کا نیک بیٹا ہے، اسے آرام سے رکھو اور ہر طرح سے خیال رکھنا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اور اسے عزت سے رکھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو عزت سے رکھو، تجھے عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام میں اوصاف حمیدہ کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے، جس کی بنا پر نیکی اور شرافت ان کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا اور غلاموں کا سلوک نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ابھی ابتدائی دور سے گزر رہی تھی جب آپ علیہ السلام پر سخت ترین آزمائش ڈالی گئی، اور آپ علیہ السلام اس امتحان میں صابر اور شاکر نکل گئے۔ دوسری بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر ڈالی جبکہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور پروانہ وار آپ علیہ السلام پر نثار ہونے لگی۔ مگر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو معصیت کے دلدل میں کیسے جھونک دیتا، تاہم آزمائش کے لیے اس امتحان سے یوسف علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی جو دل و جان سے آپ علیہ السلام پر عاشق تھی، ہر وقت اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے مذموم اور ناپاک کوششیں کرتی رہتی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی ہر آرزو کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی حقارت سے ٹھکرا دیا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ وہ آپ علیہ السلام کو محل کے اندرونی حصے کے کمرے میں لے گئی اور اپنی خواہش کا بڑی شدت سے اصرار کرنے لگی۔ زلیخا ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی، اس نے جب بے حد اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، یہ ناممکن ترین اور برا ترین فعل ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اور اللہ کی نافرمانی کروں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات اور میری جان کا مالک و خالق ہے، اور پھر تو میرے محسن کی امانت ہے، میں کیسے اپنے محسن کی امانت میں خیانت کر لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مرد و توانا بن چکے تھے اور ایک انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کے لیے ہر طرح سے فلاح نہیں ہے۔ جب اس عورت نے بے حد اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود جب وہ عورت باز نہ آئی تو آپ علیہ السلام بند کمرے سے دروازے کی طرف دوڑے، لیکن زلیخا نے آپ کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا۔ یوسف علیہ السلام زور لگا کر چھڑانے کے لیے بھاگے تو آپ علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر بھاگے۔ زلیخا بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی۔ جب یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر بھاگے، عین اسی وقت عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جو یوسف علیہ السلام کو گھبرائے ہوئے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہیں ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام بھی عزیز مصر کے پاس ٹھہر گئے، اور اتنے میں زلیخا بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے آ رہی تھی۔ دروازے سے ہانپتے ہانپتے پسینے میں شرابور برآمد ہوئی۔ اس نے جو ہی عزیز مصر کے پاس یوسف علیہ السلام کو کھڑے دیکھا تو اس نے مکاری سے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے شوہر سے واویلا کرتے ہوئے کہا، اے میرے شوہر عزیز مصر، یہ شخص سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے کہ اس نے میرے ساتھ فعل بند کرنے کی کوشش کی اور میرے انکار اور شور مچانے پر یہ بھاگ نکلا۔ کچھ مفسرین کے مطابق فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا، اور کچھ کے مطابق ایک چھوٹا بچہ جو زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے بولا، اے عزیز مصر، میری رائے ہے کہ آپ غور سے معائنہ کریں، اگر اس شخص کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ شخص بلا شبہ گناہگار ہے،
और अगर इसका दामन पीछे से फटा हुआ है तो ये बेगुनाह है और जुलेहा झूठी है। अजीज मिस्र ने जब गौर किया कि कमीज पीछे से फटी हुई है तो वो समझ गया कि जुलेहा झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। अजीज मिस्र ने शर्मिंदगी और मामले को दबाने के लिए मामले को वहीं ख़त्म कर दिया और जुलेहा को उसके मकरो फरेब पर लान तान किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरगुजर करने की दरख्वास्त की। इस मज़मून को कुरान पाक में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 25 ta 29 में बयान फरमाया गया है। अजीज़ मिस्र ने इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यह मामला पोशीदा न रह सका और बात फैल गई और मिस्र के हासो आम में जुलेहा के इश्क के चर्चे होने लगे। जुलेहा के इश्क का चर्चा आम हो गया और मिस्र के हर तबका उम्रा की औरतें जुलेहा का मजाक उड़ाने लगीं। इस पर जुलेहा को सख्त गुस्सा आया और उसने उन हासिद और तानाज़ान औरतों से बदला लेने का इरादा किया। उसने उस शहर की चीदा औरतों को जो कहती फिरती थी कि जुलेहा बहुत बेहया है कि इसने अपने गुलाम के साथ इश्क लड़ाया है, को खाने पर बुलाया और खाने की मेज़ पर ऐसे फल रखे जो छुरी से काटे बगैर ना खाए जा सकते थे और उन फलों को काटने के लिए नहायत तेज़ छुरियां भी रख दी। खाना खाने के बाद जब फल खाने का दौर शुरू हुआ तो औरतें अपने फल तराशने लगीं। तो जुलेहा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में चुपके से बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा नूर की तरह चमक रहा था। जो ही उन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने फल काटने की बजाय अपनी उंगलियों को काट लिया और बेसाख्ता कहने लगीं, बेशक ये तो कोई इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग नूर का पुतला या फरिश्ता है। जुलेहा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया। जब आप अलैहिस्सलाम वापस चले गए तो जुलेहा ने उन औरतों को पुकारा जो अभी भी हैरान बैठी थीं। वो औरतें चौंक कर होश में आईं और हैरत से अपनी उंगलियों को देखने लगीं। जुलेहा बोली, अब कहो, तुम मुझ पर ताना जन थी, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझे ताने मारती थी। अब बोलो, क्या मैं सच्ची थी या झूठी? इस बारे में सूरह यूसुफ आयत नंबर 30 ta 32 में मज़कूर है। औरतें शर्मिंदा होकर चली गईं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेहा और दूसरी औरतों को अपने बारे में बात करते हुए सुना तो अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे फरेबी औरतों के जाल से बचा ले, मुझे कैद होना बेहतर लगता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की कि मुझे इस मासियत से बचा ले रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 33 और 34 में फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, यूसुफ ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये मुझे बुलाती हैं मुझे इसके मुकाबले में कैद खाना ज़्यादा पसंद है, और अगर तूने मुझे इनके मकर से ना बचाया और मेरी मदद ना की तो कहीं मैं इनकी जानिब झुक ना जाऊं और नादानों में से ना हो जाऊं। बस इसकी रब ने सुन ली और दुआ को कबूल किया, इसने इनका मकर हटा दिया, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। जुलेहा इतनी बदनाम और जलील होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं छोड़ रही थी और मुख्तलिफ हैलो बहानों से किसी न किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसका मतलब नहीं निकल रहा था। वो पूरे मिस्र में बदनाम हो चुकी थी। इसी वजह से अजीज़े मिस्र ने अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेहा के मकरो फरेब से बच गए। इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक और साले बंदों की हर मुसीबत, हर दुख और परेशानी टाल देता है और अपनी रहमत के बादलों में लपेट लेता है। अलगर्ज अजीज़ मिस्र ने शर्मिंदगी और रुसवाई की वजह से जुलेहा को तो कुछ ना कहा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। आप अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में भी बुलंद हिम्मती और इस्तिकामत का मुजाहरा किया और अपने रवैये की वजह से जेलर और तमाम कैदियों में मकबूल और हर दिल अजीज हो गए और वो अपने अपने मसाइल हल करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए बैठते रहते। उन्हीं औसाफ़े हमीदा और इलाके हुस्ना के बाइस आप अलैहिस्सलाम कैद खाना में भी शोहरत पा गए। आप अलैहिस्सलाम ने जेल में अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग शुरू कर दी और लोगों को हक की तालीम देने लगे। इस दौरान जेल में 2 कैदी लाए गए, एक बादशाह का बावर्ची था और दूसरा बादशाह का साकी, और बादशाह को शराब पिलाया करता था। उन दोनों ने बादशाह के खिलाफ कत्ल का मंसूबा बनाया था। एक दिन दोनों ने ख्वाब देखा। बावर्ची ने देखा कि उसके सर पर रोटियां रखी हुई हैं
और कौवे और चीले उन रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं। दूसरे कैदी ने ख्वाब में देखा कि उसके सामने अंगूरों का ढेर रखा है और अंगूरों को नचोड़ नचोड़ कर रस निकाल रहा है ताकि शराब बना सके। दोनों कैदियों ने कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र किया और फरमाया, ऐ बावर्ची, तूने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है कि तुझे फांसी दे दी जाएगी और तेरी लाश को लटका दिया जाएगा जिसको चील और कौवे नोच नोच कर खाएंगे। और ऐ बादशाह को शराब पिलाने वाले साकी, तुझे ज़िंदगी मुबारक हो, तुझे रिहा कर दिया जाएगा और तू वापस अपनी नौकरी पर बहाल हो जाएगा। उसने इकरार किया कि ज़रूर मैं बादशाह से आपका जिक्र करूँगा। इस पर अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी कि मेरा बंदा मोमिन मेरे अलावा किसी और से मदद का तलबगार है। अल्लाह की रज़ा यही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सिवाय अल्लाह के किसी और पर भरोसा न करें। सो ऐसा ही हुआ। वो शख्स रिहाई पाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को भूल गया और कई साल तक भूला रहा और साकी गिरी करता रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की उस दौरान इबादत करते रहे और कैदखाने में तबलीग इस्लाम करते रहे। कैद खाने का हर कैदी और सिपाही आप अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी का मोतरिफ हो चुका था और आप अलैहिस्सलाम की नेक नामी की शोहरत फैल चुकी थी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दोस्त अब्दुल्ला हाशमी को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।